Now today's session is most important because I'm gonna do the difficult illustrations related to the short sums. So take out your textbooks, take out your notebook. Let's start with the first illustration. Let us start with the first illustration. Let's begin. Let's begin. But what does it says? 6 pairs of father and son are selected. 6 pairs of father and son are selected in a sample of an experiment to know the relationship of the height of the father and the height of their adult son. The following results are being obtained. Now they have clearly written 6 pairs. So यहाँ पर लिख दो n is equal to 6. N is equal to 6. Then sigma x given 1020. बेटा sigma x given 1020 लिखना शुरू करो, चलो मेरे साथ. Sigma x 1020. Sigma y 990. Write it down in your notebook. Come on. Write it down in your notebook. Come on. Okay. Then यहाँ पर sigma x जो है that is 1020. Sigma y जो है वो है 990. तो first step, बड़ा first step, get me what's the answer for x bar, get me the answer for y bar. x bar कैसे आएगा वो जरा यहाँ पर करते हैं. It will be sigma x upon n. तो 1020 upon n is 6. 1020 divided by 6. So that comes to 170. Y bar का क्या लगेगा formula? It will be sigma yi upon n. So 990 divided by 6. So 990 divided by 6 अगर हम करें, so that comes to 165. बराबर है. तो x बार 170 है and y बार है 165. बेटा यहां ध्यान, दिमाग की घंटी बजाओ, घंटी. ये जो x माइनस 170 का स्क्वायर दिया है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये नथिंग है बट इट इज x माइनस x बार का स्क्वायर एंड y माइनस 65. तो 65 मेरा y बार है, तो दिस इज y माइनस y बार स्क्वायर. सो कैन आई राइट आई एम गिवन विथ x माइनस x बार का स्क्वायर that is 60. Then I am given with y minus y bar ka square, that is 105. And this is x minus 170, y minus 165. So it's x minus x bar into minus karenge to y minus y bar. So this is, we have sigma x minus x bar into y minus y bar, and that comes to 45. That comes to 45. अब हमें find out क्या करना है? Obtain the regression line of the height of the son on the basis of the height of father. Regression line find out करना है. Also we have to verify the reliability of the regression model. Now deliberately I took this sum because in this sum we have to also check the reliability. Now give me thumbs up. To check the reliability हम क्या ढूंढते थे? To check the reliability, what we used to find. Yeah, Boite. Yes, sir. हाँ, to check the reliability हम क्या find out करते थे? R find out करते थे. R करेंगे कि R square करेंगे? R square. नक्की कर ले. R square. अच्छा, उस R square को हम क्या बोलते हैं? Correlation. Oh, R square, Boite.
आर स्क्वायर। हाँ वो डिटर्मिनेंट वाला। हाँ वो याद नहीं है सर, याद नहीं है मुझे, कुछ याद नहीं है। Can I say the R square was said to be coefficient of determination? कुछ जनता मैसेज कर रही है वरांस वरांस वरांस, अला ना भाई वरांस नहीं भाई, it's coefficient of determination. So let's first find B, then A, we make a regression line and then we'll find coefficient of determination, and then even we'll comment कि भाई whether we have to rely on this estimate or we don't have to rely on the estimate. So let's find B, come on. B find out करते हैं. B is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon sigma x minus x bar square. बेटा ये तुमको फॉर्मूला याद ही नहीं है, बहुत बढ़िया, इट्स ओके, मैंने लिख दी. 45 डिवाइड बाय 60, तो 45 डिवाइड बाय 60 अगर हम करें तो that comes to 0.75, that comes to 0.75. okay, then let's find out A. Let's find out A, that is y bar minus bx bar. मेरा y bar कितना है जरा चेक करो. y bar I have is 165, y bar is 165 minus b कितना है 0.75 and x bar is 170. x bar is 170, तो 0.75 into 170 अगर हम करें तो 127.5 ऐसा कुछ आ रहा है, चेक करो. 165 minus 127.5, right? Give me the final answer. A. Give me the final answer. 165 minus 127.5, 37.5, right? और उसके बाद लिखेंगे therefore the regression line, therefore the regression line y on x is equal to y cap is equal to a plus bx. a है मेरा 37.5, b क्या है मेरा 0.75 into x. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा. any difficulty faced in finding out the regression line? No beta, I can see you from the shakal, the videos which are been kept on, you don't know the formula for R. So sir, how I'll get R the squares? You don't remember the formula for R, so how will you get R square? How many of you remember that? Sia. Yes sir. हाँ, R का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? R n sigma और हमारे पास सिग्मा ये सिया R के लिए कोरिलेशन के लिए. नहीं, पर सर सिग्मा एक्स वाई नहीं है. हाँ तो क्या लगाएं? कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाएंगे, छोड़ दें. नहीं सर करना तो पड़ेगा, फाइंड तो करेंगे, फाइंड तो करना पड़ेगा. नित्या हाँ सर. बोल बेटा फॉर्मूला आर. सर सिग्मा एक्स इन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स बार होल स्क्वायर अप इन रूट में इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर ए बी रूट में. वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर. फाइंड आउट करोगे, चलो आर, लेट्स फाइंड इट आउट. आर का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा x minus x bar into y minus y bar upon root.
sigma x minus x bar square into root sigma y minus y bar square. So this was the formula which we did बरसों पहले, बरसों. हमको सर कैसे याद होगा सर? We are Gajni memories. So 45 root 60 into root 105. Root 60 into root 105. So 45 60 into 105, जो भी आंसर आया उसका रूट करो तो you are getting 79.37. So 45 divided by 79.37, 0.56. 0.56 and अब उसका बेटा r square करो, r square. So 0.56 उसका square. So 0.56 into 0.56, 0.3136. 0.3136. बेटा जिनके वीडियो ऑन है, जिनके वीडियो ऑन है बेटा 3136 या तो उसको राउंड ऑफ करके 32. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक इट ऑफ एज राउंड ऑफ एंड 0.32 लिख दो. जिनके वीडियो ऑन है जरा मुझे इशारा करके बताओ, इशारे से बताओ क्या हमें रिलाई करने का, रिग्रेशन लाइन जो हमने बनाई, क्या उस एस्टिमेट्स पर हमें रिलाई करने का, जो रिग्रेशन लाइन से हम एस्टिमेट ढूंढेंगे, कैन वी रिलाई, यस और नो? यस यस यस, नो नो नो. Very good, the answer is no. Why? Who will give me the reason why we cannot rely? Why we cannot rely? दिवसे, अला दिवसे कहीं जतो रहो यार, दिवसे भागी गयो. आ रहे हो दिवसे અહીં છે. दिवसे सर ये 1 ના ક્લોઝ નથી એટલે. the value of r square is not nearer to 1. The value of r square is not nearer to 1. Hence, the estimate by the regression line cannot be considered valid or it would be reliable. लिख लो, लिख लो. The assumption of the linearity, the assumption of the linearity of the regression model, the assumption of the linearity of the regression model is not reliable, as the value of r square, as the value of r square is not nearer to 1, as the value of r square is not nearer to 1. बराबर છે? बराबर છે? But let's go to the next illustration. Fatafat. Mark it a very important one. The next illustration. Mark it important. I'm sharing the screen.
Beta, did you read the sum? Did you read the sum? If the regression line y on x, now मेरे को regression line दे दी है 12 minus 1.5x and x bar is 6. मतलब मुझे regression line दी है y cap is equal to 12 minus 1.5x and I am given with x bar is equal to 6. मुझे x bar का value दिया है that is equal to 6. What am I supposed to find? X bar is given 6. What am I supposed to find? We are supposed to find y bar. Now see, the sum is very easy. The sum is very easy. Now we don't have any other tool to get the value of y bar because y bar का formula है sigma yi upon n. यहाँ पर ना n दिया है ना sigma yi, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है. So what we'll do is कि in this regression line के जहां पर x है वहां पर मैं x bar substitute कर दूंगा. But what will I do? कि the value of x will be substituted by x bar and whatever the answer of y cap I'll get, that answer will be y bar. Simple. As I do not have any other means to get the value, what will I do instead of this x? I will put the value of x bar over here, will solve the sum, and whatever the answer of y cap I'll get, that will become y bar. It is one of the properties of regression line, one of the properties. So let's get the answer fatafat. Let's get the answer. Y cap is equal to 12 minus 1.5. X की जगह पर x bar लिख दो, that is 6. So 12 minus 1.5 into 6, that comes to 9. So y cap का आंसर आया 3. तो it is nothing but y bar का भी आंसर आएगा same, it will be 3. Y cap will also be equal to 3. तो y bar का आंसर भी 3 हो जाएगा. कहना से सम बहुत सिंपल था, क्या बोलते हो? सम इजी था. नेक्स्ट इसी के रिलेटेड दूसरा उठाते हैं. इसी में है देखो, इफ द रिग्रेशन लाइन y cap is 11.5 plus 0.65x एंड y बार दिया है 18. हमें y बार की वैल्यू दी है 18. हमें फाइंड क्या करना है? x बार. सो वापस रिग्रेशन लाइन लिख लो. ये सेकेंड वाला सम है. y cap is equal to 11.5 plus 0.65x. मुझे दिया है y बार की वैल्यू 18 और मुझे फाइंड करना है x बार. We have to find x बार. तो y कैप की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y बार को. y कैप की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y बार को. तो हम ऐसा लिखेंगे y बार इज इक्वल टू 11.5. y बार इज इक्वल टू 11.5 प्लस 0.65x. Now this is 18 and that is equal to 11.5 plus 0.65x. But can you simplify and can you give me the answer? What will be now the value of x? 18 में से ये 11.5 हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. And this will be 0.65x. So 18 minus 11.5, that comes to 6.5. And that is equal to 0.65x. So x will be equal to 6.5 divided by 0.65. 6.5 divided by 0.65. Beta, what's the answer? 10.
6.5 डिवाइड बाय 0.65 10। तो ये x का आंसर आया 10, लेकिन हमने y कैप की जगह पर y बार लिखा था, तो यही मेरा आंसर x बार का हो जाएगा, that will be 10, that will be 10। कहना से शॉर्ट सम इजी था, x बार y बार ढूंढना इजी था, खाली रिग्रेशन लाइन में x की जगह पर x बार लिख दो तो y बार मिल जाएगा, y कैप की जगह पर y बार लिख दो तो x बार मिल जाएगा। सिंपल। Let's go to the next illustration. Come on. Let's go on to the next illustration, that is 17। अब उसमें भी दो सम है, देखो उसमें भी दो सम अपने को दिए हैं। पहला वाला मैं नहीं कराऊंगा। इफ x बार 5 है, y बार 11 है, b है 1.2, obtain the regression line y on x। I don't want to insult you. Do it. Do it. No insult. Do it on your own. No, 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 I'm not going to do it. Come on. चालू करो खुद से।
बेटा कितने लोगों ने करके आराम फरमाया है? हो गया सर, हमारा हो गया है ये। बेटा सिर्फ तुम्हें ए ढूंढना था, सिर्फ तुम्हें ए ढूंढना था। सर पता नहीं चल रहा है, रिग्रेशन में भी हम ए बी, पता नहीं ये इंटू सी ऑफ वाई सी ऑफ एक्स ए बी सी सीख रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है रिग्रेशन में। चलो, आई होप, आई एम श्योर आई डोंट वांट टू डू दिस। कोई ऐसा है जो चाहता है मैं करूं? गिव मी अ थम्स अप। उसको मैं अभी जूम से निकाल दूंगा जो जिसने थम्स अप किया। करो ना यार एक बार प्लीज, थम्स अप दो ना कि सर करवाओ यार एक बार, ये सम करवा दो प्लीज। है चलो बढ़िया, ऑल आर सो स्मार्ट। लेट्स गो टू द सेकंड सम नाउ। सेकंड सम ट्रस्ट मी, ए हूं करीस, हूं तुम्हारा पर नहीं छोड़ो, ए हूं करीस, ट्रस्ट मी। वाचिए, in the second sum what it says, x bar given to us, y bar given to us, sx square is to covariance of xy is 5:3. Obtain the regression line y on x and estimate the y when the value of x is 65 from it. मतलब हमको यहाँ पर एस्टिमेट भी करना है जब x की वैल्यू 65 अपने को दी हुई है। डू यू गेट दैट? राइट। सो यहां पर देखो सम में दिया क्या है, sx स्क्वायर इज टू कोवैरियंस ऑफ xy इज 5:3, ऐसा दिया है। यस और नो? मतलब इसको अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं, मैथमेटिकली अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो ये इस तरह से एक्सप्रेस होता है, sx स्क्वायर डिवाइड बाय कोवैरियंस ऑफ, divide by covariance of xy is 5/3, ऐसा इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो अगर तुमको शॉर्ट सम्स के फॉर्मूला याद है, बी का शॉर्ट सम का फॉर्मूला याद है, पहला ही वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो शॉर्ट सम्स की लिस्ट में पहला ही वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या है क्या है क्या है फॉर्मूला, क्या है यार? सर फॉर्मूला से बार बार पूछा मत करो यार, हमें कितने पेज पलटने पड़ते हैं सर, कितनी मेहनत लगती है हमको, पता है? जानवी 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 यस સર કોવરાન્સ ઓફ xy upon sx સ્ક્વેર. ઓકે, એટલે ફોર્મ્યુલા કઈ એવું કે છે જાનવી, જરા જો તો આવો છે ફોર્મ્યુલા, બી નો ફોર્મ્યુલા છે કોવરાન્સ ઓફ xy, કોવરાન્સ ઓફ xy अपॉन sx स्क्वेर, બરાબર? પણ જાનવી એવું તો મને આપ્યું જ નથી, મને કેવી રીતે મળશે? અનમ્યુટ અનમ્યુટ જાનવી। સર આપણે અહીંયા લખ્યું ને કે sx સ્ક્વેર upon કોવરાન્સ ઓફ xy, हाँ એનું ઊંધું કરી દઈએ તો? अच्छा એનું ઊંધું કરી દેવાનું। यस बेटा, डोंट यू सी इट्स अ मिरर इमेज। सर इंग्लिश में ना बोलो, શું બોલો છો? આમ એક જેવું नहीं देखा तो ઊંધું ચત્તુ, मिरर इमेज ઊંધું चत्तू एक જેવું नहीं देखा तो जरा चेक करो। तो अगर हमको जो सम में ये वाला जो इक्वेशन हमको जो दिया है, हमको ये सम में आज ઊંધું ચત્તુ આપ્યું છે, ये जो चीज अगर मुझे दी है, मैं उसको अगर रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसी चीज को रिवर्स कर दूं तो कहना से हमको जो फॉर्मूला में चाहिए, ये आइटम को अगर हम रिवर्स कर दें और इसको भी रिवर्स कर दे तो हमको ये मिल जाएगा ना कोवैरियंस वाला। तो रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, which becomes 3/5, which becomes 3/5 and that comes to 0.6, that comes to 0.6। आज ફોર્મ્યુલા ને ઊંધો કરી દીધો બેટા, એટલે આપણો બી નો ફોર્મ્યુલા બની ગયો। હવે આપણે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ। લેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ એ, y બાર માઇનસ બી एक्स બાર, तो 75 माइनस
0.6, x बार है अपना 60, तो 75 माइनस बड़ा 0.6 इंटू 60 अगर हम करें तो 36, तो 75 minus 36 if I do, that comes to 39. That comes to 39, and then we'll write के अपना regression line y cap is equal to a plus bx. Y cap is equal to a plus bx. A is 39 plus b क्या है जरा चेक करो. A is 39, b क्या है जरा चेक करो, that is 0.6, and then x. And in the question we are given with the value of x 65. We are given with the value of x, which is 65. So 39 plus 0.6 into 65. So 39 plus 0.6 into 65, that's 39 again. So 39 plus 39, that comes to 78. 39 plus 39, that comes to 78. बेटा कितने लोगों का हो गया था मेरे करने से पहले? समझ में भी आया? समझ में भी आया? बढ़िया, जोरदार. बेटा एक डायलॉग बड़े दिनों से नहीं मारा यार मैंने. एक डायलॉग बड़े दिनों से नहीं मारा यार मैंने. मारू तुम अगर परमिशन दो तो मार दे एक डायलॉग यार. बहुत दिनों से नहीं मारे. मार दे. क्या पढ़ाने लगा हूं यार मैं ऑनलाइन में भी. ऑफलाइन में तो तुमने देख ही लिया था. फरवरी से मार्च जो एक आध महीने हम मिले थे तब तुमने हमसे मतलब ऑफलाइन में भी तुमने देख ही लिया था. लेकिन क्या पढ़ाने लगा हूं यार आजकल मैं ऑनलाइन. एंड स्पेशली इफ आई एम डूइंग इलस्ट्रेशंस तो मेरे को सॉल्यूशन करने का भी टेंशन नहीं होता है. जनता सॉल्यूशन के साथ रेडी होके बोलती है हाँ सर आ गया जल्दी लेक्चर पता है नेट बचाओ मुझे. हाँ थई गयो जवा दे. सर डेटा बचाने का तो हमको होता है ना सर. समझो उम्र है मोबाइल फोन से खेलने की हमारी. चलो 18th वाला सम उठाते हैं. लेट्स डू द 18th वाला सम. The fitted regression line y on x is equal to y cap is 50 plus 3x. लिखो चलो. हमें रिग्रेशन लाइन दी हुई है, लिख देंगे सम में y cap is equal to 50 plus 3.5x. If an observation 16 and 108, now observation 16 and 108 का मतलब क्या? ये x है और ये y है. एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर लिख दो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के ऊपर लिख लो ये हमें ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन दिए थे. x का दिया है 16, y का दिया है 108. बराबर है. नाउ यूज द रिग्रेशन लाइन. फाइंड द एरर इन एस्टिमेटिंग y व्हेन x इज 16. मतलब मुझे एरर ढूंढना है. एरर. सो एरर क्या है वो ढूंढ लेते हैं पहले. चलो x की वैल्यू अगर 16 है तो y कैप ढूंढ लेते हैं. चलो अगर x की वैल्यू 16 है तो हम y कैप ढूंढ लेते हैं. सो 3.5 into 16 that comes to 56. So 50 plus 56. So that comes to 106. That comes to 106. Okay.
अब मेरा y कैप आया है 106. गिव मी अ थम्स अप. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द एरर फॉर्मूला? एरर 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 एरर. सौम्या एरर. सौम्या. Yes, sir. yes सौम्या. Y minus Y cap. It is y minus y cap. Acha, tell me Soumya, where is y given to us in the sum? Y. 108. Yes, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बोला ओरिजिनल वैल्यू हमको y की दी है 108 और हमने एस्टिमेट करी 106. तो बेटा मेरा एरर क्या आया जरा लिखेंगे. अपना एरर क्या आया जरा लिखेंगे. उसका फॉर्मूला है ओरिजिनल y माइनस y कैप. ओरिजिनल y माइनस y कैप. एंड ओरिजिनल y गिवन टू अस इज 108. ओरिजिनल y हमको दिया है 108 एंड मेरा y कैप है 106. सो माझा एरर इज 2. My error is 2. मतलब जब हम एस्टिमेट करने के लिए जा रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू से 2 का डिविएशन आ रहा है अपना. ओरिजिनल वैल्यू से 2 का डिविएशन आ रहा है अपना. ठीक है, ठीक है. अब इसी इलस्ट्रेशन में सेम चीजें दोबारा करने के लिए बोली है. चलो खुद से करो. उसी इलस्ट्रेशन में इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1030, मतलब ये है अपना x, ये है अपना y और ये भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है. ओरिजिनल. ओके, मुझे रिग्रेशन लाइन दे दी है. वापस एरर फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू 10 है. अभी ऊपर वाले में भी सेम चीज करवाया. मुझे एरर मैसेज करके दो. मुझे एरर मैसेज करके भेजो. आई एम नॉट डूइंग इट. आई एम नॉट डूइंग इट. मैसेज एरर करके जो है मैसेज, जो एरर का आंसर आ रहा है वो मैसेज करो. बेटा होलसेल में मैसेज आ रहे हैं, होलसेल में. और सबने, वाओ बेटा तुमने पूरी लड्डू की दुकान भेज दी है. ऐसा लग रहा है मेरा मैसेज इनबॉक्स देखोगे तो पूरा लड्डू का दुकान आ गया है. 0, देयर इज नो एरर. सर हमारा भी बोर्ड का पेपर अगर हमको लिखने का मौका मिला तो ऐसा ही होगा, विदाउट एनी एरर. अगर सरकार मौका देगी तो सर. हम तो दुआ कर रहे हैं कि इस साल जैसे मास प्रमोशन मिला है जनता को, वैसा खाएं लूटे, मजा आएगा सर. बेटा ये हिस्ट्री में ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऐसा हुआ है. नाउ डू नॉट एक्सपेक्ट कि यू विल बी गेटिंग मास प्रमोशन. नो, नेवर. पढ़ाई करनी है हमको. यू आर नॉट द लकी वंस, यू आर द वंस हु हैज टू रियली वर्क हार्ड फॉर देयर मार्क्स. ठीक है सर, काश मम्मी पापा ने 1 साल पहले पैदा कर दिया होता तो मास प्रमोशन में आज निकल गए होते. मेहनत करने की अच्छी कहाँ लगती है. और मम्मी पापा ने 1 साल पहले पैदा किया होता तो 10th में भी मास प्रमोशन, 11, 12 साला सब में मास प्रमोशन, मजा आ जाता है. चलो
छेल्लो सम करिए आज नो. Let's do the last sum for today. The error for the second one is 0. The answer or the message you did कि second वाले sum का जो हम calculation कर रहे हैं तो अपना error 0 आ रहा है. That's absolutely correct. Come on. Right. 19th का चलो first one find out करते हैं. 19th का first one. मेरे को y cap दिया है 25 plus 3x. Covariance दिया है find standard deviation of x. Okay. And we also have to find out the coefficient of determination if standard deviation of y is 15. मतलब मुझे coefficient of determination भी find out करना है. ठीक है, कर लेते हैं. सम इजी है, घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ. पहले लिख लेते हैं. चलो, y cap is equal to 25 plus 3x covariance of xy, that's equal to 48. Covariance of xy, that's equal to 48. Okay. Standard deviation of x क्या है वो हमें find out करना है. Then coefficient of determination, that is r square, वो हमें find out करना है. And then standard deviation of y हमको दे के रखे हैं, that is 15. Standard deviation of y हमको दे के रखे हैं, that is 15. बराबर है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन से अब मैं अगर तुमको बताऊं तो ये जो 25 है वो है मेरा a, 3 जो है वो है मेरा b. अरे हाँ के ना. तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कैसे मिलेगा जरा देखो जरा. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कैसे मिलेगा जरा यहां ध्यान. b का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा covariance of xy, covariance of xy divide by covariance of xy divide by sx square. So therefore 3 is equal to covariance of xy, which is 48, right? Now that is 48 upon sx square. Therefore sx square is equal to 48 divided by 3. 48 divided by 3. That comes to 16. But that is sx square. तो sx कैसे मिलेगा? √16, that is 4. √16, that is 4. Okay. फिर मतलब sx जो अपने को ढूंढने का था वो मिल गया. sx जो अपने को ढूंढने का था वो मिल गया. अब b का ही दोबारा एक फॉर्मूला लगाएंगे. b का ही r इंटू sy अपॉन sx, जिससे हम r की वैल्यू ढूंढ लेंगे. एंड देन हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी अपने को मिल जाएगा. सो b है मेरा 3, r खबर नहीं, sy है 15 और sx है 4. बराबर. सो 15 डिवाइड बाय पहले 4 कर दो, that comes to 3.75. so 3 is equal to r into 3.75 .
r into 3.75. Therefore, r is equal to 3 divided by 3.75. 3 divided by 3.75, that is 0.8. and r square अगर हम करें तो 0.8 का स्क्वायर which is 0.64. 0.8 का स्क्वायर which is 0.64. Right? बेटा इसी इलस्ट्रेशन में एक और क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में निपटा देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन 19, 20, 21 ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा दिख रहा है कि चैप्टर खत्म हो रहा है, कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट थियरी है वो भी डिस्कस कर लेंगे, और ये जो गिने चुने बाकी के इलस्ट्रेशन है वो भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है।